Hello everyone, welcome to you all to this channel Gyandut 2.0 initiated by College Education Rajasthan Jaipur. I am Reena Kumari, Assistant Professor, Department of English, and the topic of our today's e-lecture is an essay Freedom written by George Bernard Shaw. Dear students, today we will discuss the essay Freedom written by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, as you can able to see his picture on your screen, and the name of the today's essay is Freedom. So just before to start our today's topic, let's have a look on the introduction to the writer. So here is the introduction to the writer. The full name of G.B. Shaw is George Bernard Shaw, and he was born in Dublin. He was born in Dublin. Dublin is in Ireland, and from his father he learned how to laugh at life's tragedies because he spent a tragic life. जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो हैं इन्होंने काफी स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में. So here we can say that he from his father he learned how to laugh at life's tragedy, and from his mother a sound appreciation of music. And he was born in 26th July 1856. And this lifespan of George Bernard Shaw is 1856 to 1950. So he was an Irish playwright, critic and political activist. And in 1884 he became one of the founder of Fabian Society. And before becoming the member of Fabian Society, he moved to London in 1876, and there in 1884 he became one of the founder of Fabian Society. And he remained lifelong champion of a highly individual economic faith, creative evolution, spelling reformer, and vegetarianism. And he wrote more than 60 plays. And here are the some name of his major works, major plays such as Men and Superman he wrote in 1902, and Pygmalion in 1912, Saint John in 1923. And when you will pursue your master's degree, you can also read his uh, drama, like his novel and his play Pygmalion. And next, in 1925 he was awarded the Nobel Prize. जॉर्ज बर्नार्ड शाह को नोबेल प्राइज भी मिला, एंड 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया फॉर हिज वर्क which is marked by both idealism and humanity. Its stimulating satire often being infused with the singular poetic beauty. And he died in 1950. So this is the short introduction of George Bernard Shaw. And dear student, let's have a look on our today's essay. The name of this essay is Freedom. फ्रीडम फ्रीडम जो टाइटल है हमारे ऐसे का, उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने फ्रीडम के बारे में क्या लिखा होगा. सो लेट्स स्टार्ट, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऐसे फ्रीडम. फ्रीडम क्या है? एक्चुअली दिस ऐसे इज a speech which delivered by G.B. Shaw ऑन BBC लंदन. ये जो इनका ऐसे है, ये इन्होंने BBC लंदन जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है वहाँ का BBC लंदन, उस पर स्पीच डिलीवर किया था. एंड दिस ऐसे रिवील हिज आर्ग्यूमेंट्स फॉर न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ
फ्रीडम। और इसमें उन्होंने जो न्यू मीनिंग है फ्रीडम के, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए। सो ये टोटली है एक स्पीच है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने डिलीवर किया बीबीसी पर। एंड here the author GB Shah describes the meaning of freedom। यहाँ उन्होंने मीनिंग ऑफ फ्रीडम बताया है, वो भी कैसे, एट इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल। कि फ्रीडम का जो मीनिंग है वो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल बताया, सोशल लेवल पे भी बताया है और पॉलिटिकल लेवल पे भी। इन तीनों लेवल पे फ्रीडम का क्या मीनिंग हो सकता है। एंड नेक्स्ट ही गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड अननेचुरल स्लेवरी, and he gives his own opinion about the freedom। Here he gives his own opinion। उन्होंने कहा है, जैसे the very first line of this essay जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, एड्रेस कर रहे हैं सभी पीपल को, और वो कहते हैं, नाउ रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, I have no time to talk the usual old nonsense about freedom tonight। कि जो पुराना धर्रा चला आ रहा है कि फ्रीडम क्या होती है, एक परफेक्ट फ्री पर्सन क्या होता है, तो उस पुराने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी बात यहाँ मैं नहीं करने जा रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं कि आज मैं आपको एक फ्रीडम का एक अलग ही एटीट्यूड बताऊंगा, एक न्यू एटीट्यूड यहाँ पे बताऊंगा अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये ऐसे हैं जो उन्होंने एक स्पीच के लेवल पे एक बीबीसी रेडियो चैनल पे उन्होंने स्पीच सबके सामने वहां पे लंदन ब्रॉडकास्ट की। सो he gives his own opinion, and first of all he gives the definition of perfect freedom। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि परफेक्ट फ्रीडम क्या होता है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि परफेक्ट फ्री पर्सन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। ऐसे ये है जो बड़ा ऐसे है, ऑलमोस्ट दिस ऐसे इज डिवाइडेड इनटू द 5 यूनिट्स में ये ऐसे डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में इन्होंने परफेक्ट फ्री पर्सन और परफेक्ट फ्रीडम के बारे में बताया है। सेकेंड यूनिट में जो है जीबी शाह ने स्लेवरीज के बारे में बताया है कि नेचुरल स्लेवरी क्या है और अननेचुरल स्लेवरी क्या है, दोनों में अंतर बताया है। और ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट में इन्होंने बताया है कि कैसे लेबर क्लास, जो लेबर क्लास है उसके लिए वोट टू राइट है, वो होता है, लेकिन असल में क्या हमें हमारे मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करने का मौका मिलता है। और यूनिट 4th और 5th में भी वो इसी तरीके से सार निकालते जाते हैं कि किस प्रकार से जो है एक वर्किंग क्लास कैसे अननेचुरल स्लेवरी बियर करती है और करते चले जाते हैं और कभी भी वो इस स्लेवरी से मुक्त नहीं हो पाते। तो ये एक लंबा ऐसे है, 5 यूनिट में डिवाइड है, और शॉर्टली हम यहाँ पे वन पॉइंट टू द पॉइंट इस ऐसे को डिस्कस करेंगे। चूंकि यूजी लेवल स्टूडेंट्स के लिए ऐसे में से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सामने पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि व्हाई अकॉर्डिंग टू शाह इन परफेक्ट फ्रीडम नॉट पॉसिबल। एंड नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। नेक्स्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डेफिनेशन डज शाह गिव ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल स्लेवरी। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शाह डज थिंक ऑफ राइट टू वोट एंड हाउ इज मेन्स स्लेवरी टू नेचर प्लीजेंट टू ऑल ऑफ अस। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, समराइज इन योर ओन वर्ड्स जीबी शाह ऐसे फ्रीडम। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स start our today's e-lecture according to the answer all of about these questions like we have discussed here. So first of all, GB Shah tells about the perfect
freedom. What is perfect freedom? And according to Shah, perfect freedom means to do anything which a man likes and to do when and where he likes or do nothing if he does not like. Means perfect freedom वो होती है कि कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सके, जहां चाहे जैसे चाहे जब चाहे कर सके और कुछ भी ना करे यदि वो नहीं चाहे तो. सो this is the definition given by George Bernard Shaw, definition of perfect freedom. And next he says what is perfect, who is perfect free person. And the this essay is a speech, is in speech form, which was delivered by G.B. Shah on radio broadcasting channel. And first off he tells about the perfect freedom. And he says that what is perfect freedom? Perfect freedom means a man can do anything which he like, when he like, and where he like. But this thing is not humorous, but here lies a philosophy of life. ये हमें मजाक के तरीके से लगता है कि क्या इस तरीके से भी परफेक्ट फ्रीडम हो सकती है, पर एक्चुअली यहाँ एक ह्यूमरस तरीके से नहीं सोच करके यहाँ एक फिलोसफी इसमें छिपी हुई है. मीन्स here G.B. Shah says that it is not possible to do anything according to our liking. हमारी लाइकिंग के अनुसार कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है. So he says that perfect freedom is not possible. So G.B. Shah क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि इस तरीके से अगर हम परफेक्ट फ्रीडम की डेफिनेशन लेते हैं तो इस तरह से परफेक्ट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा वो नहीं कर सकता जो वो चाहता हो. एंड नेक्स्ट ही सेज दैट देयर इज नो एनी फ्री पर्सन लाइक दैट. Everyone have to do his works according to the law, nature and his master also. क्यों परफेक्ट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर किसी को किसी न किसी का जो ऑर्डर है वो फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो हमारी सोसाइटी के लॉज हो, चाहे नेचर हो, या चाहे हमारे कोई मास्टर हो, तो हमें कहीं ना कहीं इनका ऑर्डर फॉलो करना होता है. सो परफेक्ट फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल. Here G.B. Shah says that perfect freedom is not possible. And next he tells about the perfect free person. Who is perfect free person? And he says, after revealing about the perfect freedom, the author reveals that who is perfectly free person. And perfectly free person is one who can enjoy the perfect freedom. Perfectly free person कौन है? जो enjoy कर सकता है परफेक्ट फ्रीडम. अब परफेक्ट फ्रीडम क्या होगी? वो ये होगी who one can do and live according to his wish. And means perfectly free person is one who can do and live according to his own wish. But it is not possible. Is it possible, dear students? No. क्योंकि किसी न किसी तरीके की ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है, चाहे हम कितने ही रिच पर्सन हो, कितने ही अमीर हो, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी मास्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमें उस समाज के लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा. जो नेचर हमें ऑर्डर देती है उन नेचर के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो totally G.B. Shah says that perfect freedom is not possible, and no one can be a perfect free person also. And so there is none who can do anything according to their wish, and so none can be called the perfectly free person. And further, the essayist G.B. Shah describes the kinds of slavery. एंड नेक्स्ट जो है वो G.B. शाह हमें बताएंगे काइंड्स ऑफ स्लेवरी के बारे में, कि हमें किस तरीके से जो है स्लेवरी वो बियर करनी पड़ती है, क्योंकि हम खुद बिल्कुल भी फ्री नहीं हो सकते. हमें नेचर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हमें सोसाइटी और हमारे सिटी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, या अगर हम
गरीब हैं, लेबर क्लास हैं, तो हमें हमारे मास्टर्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट जीबी शाह tells about the two kinds of slavery. First is natural slavery and second is unnatural slavery. So, dear student, let's start. What is natural slavery? And firstly, the author says that everyone has to perform natural slavery. And natural slavery means the slavery of man to nature. Natural slavery means a slavery of man to nature, and we cannot escape ourselves from some essential natural needs. We can we cannot avoid the some essential natural needs, जो हमारी natural needs हैं, जैसे कि हम भूख लगती है तो हमें खाना खाना है, प्यास लगती है तो पानी पीना है, नींद आ जाती है हमें तो हमें सोना होता है, और भी जो नेचुरल कॉल हैं जो हमारे बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए हम कार्य में लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो नेचुरल स्लेवरी है, and everyone has to perform these kind of natural slaveries, and all these natural essential needs we have to perform daily, और जो हमारे नेचुरल एसेंशियल नीड्स हैं ये हमें डेली परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंड दीज नीड्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, और ये सारे जो हमारे नेचुरल जो जरूरी हमारी चीजें हैं, जो प्रकृति के प्रति हमें जितनी जरूरत की जो चीजें करनी पड़ती है वो एक तरीके से हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, और हमारी लाइफ को जो है ये चीजें वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट बनाती है. सो दिस इज द नेचुरल स्लेवरी, एंड नेचुरल स्लेवरी इज वेरी प्लीजेंट टू अस. ये हमें आराम देने वाली होती है. हमें बहुत प्यास लगी होती है, पानी पीते हैं बहुत रिलीफ होता है, बहुत भूख लगी होती है, हमें खाना खाते ही बहुत रिलीफ मिलता है, और हम बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं तो सोते ही कैसे हमें जो है बहुत स्लीप लेते ही हमें इतना आनंद आने लगता है. तो ये सारी चीजें जो है नेचुरल जो एसेंशियल नीड्स है हमारी, वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, और नेचुरल हर किसी को नेचुरल स्लेवरी बियर करनी पड़ती है. चूंकि नेचुरल स्लेवरी जो है वो प्लीजेंट है, तो ये ज्यादा भी हो जाती है तो भी हमें इनसे आनंद ही आता है. एंड नेचुरल स्लेवरी इज वेरी काइंड एंड प्लीजेंट टू अस, एंड नन कैन गेट रिड ऑफ सच काइंड ऑफ स्लेवरी. नेचुरल जो स्लेवरी है इससे कोई भी बच नहीं सकता, ऐसा जीबी शाह कहते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल, अवर नीड टू सेटिस्फाई अवर हंगर, our thirst, our sleep to refresh our body, etc. And there are so many other works which are performed by us daily. और कई ऐसे और वर्क्स हैं जो हमें डेली परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे वॉशिंग, पुटिंग ऑन क्लोथ्स एंड our calls to nature, etc. And these are necessary things which we have to perform daily, and no one else can get rid of such kind of natural slavery, even if he is a king, a rich man or a common man. कोई भी इस स्लेवरी से बच नहीं सकता, either it is a king or rich man or a common man. And this natural slavery is very kind and pleasant to us. The natural slavery works cannot be avoided by anyone, and so we can say that the perfect freedom is not possible at any cost, and our natural needs takes 12 hours of our daily life. और हमारे जो नेचुरल नीड है, सुबह उठने से लगा के शाम के सोने तक, नहाना धोना, खाना पीना, उठना, जितने भी नेचुरल कॉल्स है सब कुछ, इनमें हमारा ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ अवर डेली लाइफ हम इनमें खर्च करते हैं. इसके अलावा जीबी शाह जो है वो यहाँ पे एक और चीज मेंशन करते हैं कि लेडी जो है उनको एक और नेचुरल स्लेवरी वो ज्यादा पे करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है. वो क्या है? चाइल्ड बियरिंग की, कि जो महिलाएं हैं उनको चाइल्ड बियरिंग की नेचुरल स्लेवरी भी एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ती है. सो टोटली वी कैन से दैट देयर इज no any person who can be called a perfect free, and who can say that I am enjoying the perfect freedom. तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, क्योंकि हमें किसी न किसी रूप में नेचुरल स्लेवरी तो डेफिनेटली बियर करनी पड़ती है. तो कोई भी परफेक्ट फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता, और कोई भी परफेक्ट फ्री पर्सन
नहीं कहला सकता. So this is the type of natural slavery, and next is the unnatural slavery. And according to the Shah, unnatural slavery means a slavery of man to man. हमें man to man slavery भी करनी पड़ती है. कैसे कि जो रिच क्लास है, अच्छा जीबी शाह जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया है क्लास सब्जेक्शन, कि कैसे रिच क्लास जो है वो पुअर क्लास को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है, और किस तरीके से कई बार जो है उनको इतनी अननेचुरल स्लेवरी बियर करनी पड़ती है कि उनका बॉडी टू दी सोल इसके लिए वो हानिकारक हो जाती है. तो इस प्रकार से अननेचुरल स्लेवरी के बारे में जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शा के जो व्यूज है वो कुछ इस तरीके से हैं. Unnatural slavery means a slavery of man to man, and according to the Shah, if a man lives in civilized country, his freedom is restricted by the laws of the country. तो कई बार क्या होता है कि हम चाहे कितने ही फ्री हैं, कितने ही रिच हैं, लेकिन हमारी जो फ्रीडम है, यदि हम किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है वहां के लॉज और ऑर्डर्स के द्वारा. और लॉज एंड ऑर्डर्स किन के द्वारा एक्टेड किए जाते हैं? बाय द पुलिस और बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड विच आर एक्टेड बाय आवर पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, and we are compelled by them to do or not to do a particular act. और हम हमारे सिटी के जो पुलिस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो एक्ट जिनके द्वारा हमारे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराया जाता है, तो हमें ये रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है. एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड एम्प्लॉयर्स also put us on this type of unnatural slavery. और हमारे जो कई बार क्या होता है वर्किंग क्लास के ऊपर भी जो मास्टर क्लास होते हैं वो इस तरह की अननेचुरल स्लेवरी को हमारे ऊपर पुट करते हैं, क्योंकि वर्किंग क्लास को अपने मालिक के प्रति ही उत्तरदायी रहना होता है, उसी के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं. इफ वी कैन नॉट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड, एंड यदि हम लॉज ऑफ द लैंड जो है उनको फॉलो नहीं करते हैं, the courts can imprison us और put fine on us. तो हमें imprisonment भी मिल सकता है और हमारे ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है. We cannot find any reason to complain because they say that by putting the laws and orders they increase our freedom, and when we do not able to follow the laws of our country, we can be imprisoned and we can be put on fine also, and we cannot complain to the anybody because they say the administratives of our society of our country says that by putting these laws they increase our freedom, कि वो नियम कानून जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं सोसाइटी के, उनके द्वारा वो हमारी फ्रीडम को इंक्रीज कर रहे हैं, हमें फ्रीडम दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. इस तरीके से हम अननेचुरल स्लेवरी बियर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, हमारे लॉज एंड ऑर्डर्स की. अगली जो है वो क्या कहते हैं हमें कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तुम्हें बाय दीज ऑर्डर्स एंड लॉज, एंड दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द असॉल्ट, अगेंस्ट द रॉबरी एंड डिसऑर्डर, एंड इन द अदर केस द लैंडलॉर्ड्स रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम. ये तो हो गया हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स कैसे हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज द अननेचुरल स्लेवरी का जो सेकंड टाइप वो क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स, जो अपर क्लास है, जो मास्टर क्लास है, वो भी हमारी लाइफ को, हमारे फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. वो क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उनको लैंडलॉर्ड्स या मास्टर क्लास के अंडर काम करना होता है. सो बाय आस्किंग अस टू वोट इन फेवर ऑफ देम. और जो हमारे मास्टर क्लास है, लैंडलॉर्ड क्लास है, वो हमारी फ्रीडम को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? वो कहेंगे हमारे फेवर में आपको वोट करना है. यहाँ पे जीबी शाह जो है वो वोट, राइट टू वोट के बारे में भी हमें डिस्क्राइब करते हैं. वो कहते हैं कि हमारा मानना है कि हमारे पास में क्या है, वी हैव द पावर ऑफ आवर वोट.
कि हमारे पास में हमारे वोट का पावर है, बट इन रियलिटी वी डू नॉट एबल टू चूज द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर चॉइस। हमारी चॉइस का रिप्रेजेंटेटिव भी हम नहीं चूज कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू यूज अवर प्रॉपर वोट। हम हमारे वोट का प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वोट कहाँ देना होता है। यदि हम लोअर क्लास है, किसी लैंडलॉर्ड, किसी मास्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे मास्टर के फेवर में ही वोट देना होगा, उसके फेवर में ही वोट करना होगा। जीबी शाह ये भी कहते हैं कि लेडी को जब वोट करने का अधिकार मिला तो उनको भी अपना एक्चुअल लीडर चूज करने का कोई हक नहीं मिला, क्योंकि उनका मानना ये है कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 जो हमारे वोटर हैं वो वर्किंग क्लास है, और उन्हें वही वोट देना होगा जिस मास्टर के अंडर वो काम कर रहे हैं, और जैसा उनके मास्टर्स चाहेंगे वो अपना वोट वहीं पे ही कास्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से टोटली जो हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े सपने, वोट टू राइट, वोट टू राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध नहीं होता है। ऐसा जीबी शाह के यहाँ पे व्यूज हैं। एंड he said that by asking to the vote in favor of them, in the same way our employer limits our freedom in many ways। और हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जो यदि हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तब भी हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। वो किस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? बाय डिजाइन अवर यूनिफॉर्म, बाय डिजाइन द आवर्स ऑफ वर्क्स एटसेट्रा। यूनिफॉर्म डिजाइन करके पर्टिकुलर कि नहीं आप यही यूनिफॉर्म पहनोगे, आपको इतने ही आवर्स काम करना है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? ऑल दैट थिंग्स आर रेस्ट्रिक्टेड आवर फ्रीडम, एंड इफ वी डू नॉट फॉलो हिज ऑर्डर्स, और यदि हम उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, देन वी कैन बी किक्ड आउट। तो हमें हमारे वर्क्स, हमारे एम्प्लॉयमेंट से आउट भी कर दिया जा सकता है। सो दिस टाइप ऑफ अननेचुरल स्लेवरी इज अनप्लीजेंट टू अस। सो अननेचुरल स्लेवरी जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट है। इट इज अनप्लीजेंट टू द बॉडी एंड सोल। कई बार जो हमारे लेबर क्लास है उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ता है, तो इसलिए अननेचुरल स्लेवरी जो है वो यहाँ पर बहुत सही नहीं बताई गई है, एक अनप्लीजेंट बताई गई है जीबी शाह के द्वारा। एंड फर्दर ही गिव्स द डेफिनेशन बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल स्लेवरी। So these are the differences between two kinds of slavery. Two kinds of slavery means first is natural slavery and second is unnatural slavery. So these are the differences between two kinds of slavery. Here Shah points out that there is two kinds of slavery having big differences, and we are all the slaves of nature, but the nature is very kind to us. He says just he want to say that the natural slavery is kind to us, and nature is very kind hearted, generous and pleasant to our slaves. We are the slave of nature, and nature is very kind, very generous and very pleasant to us. So we can say that the natural slavery is very pleasant for all of us, and nature has made our necessary needs। नेचर जो है वो हमारी नेसेसरी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज नेसेसरी फॉर अस, मीन्स नेचुरल स्लेवरी इज नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस, एंड इट गिव्स द ग्रेटेस्ट प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन टू अस। नेचुरल स्लेवरी जो है वो हमें प्लेजर देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, बट ऑन द अदर हैंड द अननेचुरल स्लेवरी इज टोटली अपोजिट टू द नेचुरल स्लेवरी। In the case of main to main slavery, unnatural slavery means a main to main slavery. A main, in the case of main to main slavery, a main becomes a slave to the other man, and though all are free persons now, and a man have to do work under any person or something, it becomes hateful and unpleasant to the body or soul. कई बार जो क्या होता है, किसी दूसरे आदमी के अंडर में काम करना, एक मास्टर क्लास के अंडर में एक लेबर क्लास को काम करना बहुत ही हेटफुल, बहुत ही अनप्लीजेंट बन जाता है। एंड George Bernard Shaw says that in case of man to man slavery, a man becomes a slave to the other man
and though all are free person, but now when a man works under the person on wages, and he should um, never expect kindness from the other man. So these are the types of two kinds of slavery, natural and unnatural slavery. And this is the big difference between the natural slavery और unnatural slavery, जो यहाँ पे जीबी शाह ने बताया है कि किस तरह से नेचुरल और अननेचुरल स्लेवरी जो है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है और कैसे अनुपयोगी। तो जो नेचुरल स्लेवरी है वो तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, प्लीजेंट है, प्लेजर गिविंग है, बट जो अननेचुरल स्लेवरी जो है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और उन्होंने जो इस स्लेवरी को बियर करने में जो रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट एजेंसीज भी बताए हैं कि हमारे गवर्नमेंट एजेंसी भी कैसे हमें स्लेव बना देती है, कैसे हमारे ऊपर गवर्नमेंट एजेंसीज भी क्या करती हैं कि हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर हमारे ऊपर बना देते हैं जो हमें बियर करने होते हैं, और इस प्रकार से हमें स्लेव बना लिया जाता है। सो दिस इज द एसे बाय जॉर्ज बर्नार्ड शाह, और उन्होंने बताया है कि कैसे जो है एक परफेक्ट फ्री या परफेक्ट फ्रीडम या परफेक्ट फ्री पर्सन नहीं हो सकता कोई भी, हमें किसी न किसी तरीके की जो स्लेवरी है वो बियर करनी पड़ती ही है, ऐसा जीबी शाह ने इस ऐसे में हमें कहा है। एंड अगर शुरू से हम इस ऐसे को देखें तो ये ऐसे ऑलमोस्ट 5 यूनिट में डिवाइडेड है, और यूनिट बाय यूनिट जो है जीबी शाह ने यहाँ डिस्कस किया। सबसे पहले हमें बताया कि परफेक्ट फ्रीडम क्या होती है। परफेक्ट फ्रीडम क्या होती है? परफेक्ट फ्रीडम ये होती है कि व्हेन कोई भी व्यक्ति जब डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विश और डू नथिंग व्हेन ही डज नॉट, जब उसको इच्छा हो जब करे, जब इच्छा हो जब नहीं करे। फिर उन्होंने बताया कि परफेक्ट फ्री पर्सन कौन होता है। देन उन्होंने बताया है टू काइंड्स ऑफ स्लेवरी, नेचुरल स्लेवरी, अननेचुरल स्लेवरी, और उन्होंने डिफरेंस बताए हैं टू काइंड ऑफ स्लेवरी के। एंड नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके भी क्या रोल है, और हमारा वोट टू राइट राइट टू वोट जो है उसका भी किस प्रकार से मिसयूज किया जा सकता है। सो ये ऐसे था जीबी शाह का। एंड in this essay the writer tells about the definition of freedom. Sorry. So in this essay conveys a deep-rooted philosophical thoughts. As G.B. Shah says that we all are born free. Philosophical thought क्या है? All we are born free, but none is free here. He says, G.B. Shah says that everybody follows two kinds of slavery, that is natural slavery of nature to man, man to nature, and the unnatural slavery of man to man. And so none is the perfectly free person, and thus Shah says that the perfect freedom is not possible at any cost. So that is all for today, dear students. This is our today's essay, Freedom, written by George Bernard Shaw. And I hope all of you understood this essay very, very much. And thanks to you all for being with us. And please continue watching this channel, Gyandut 2.0. Thank you. Thank you so much.